తాజా సమాచారం చూస్తున్నాం. బీహార్లో రాజకీయ సంక్షోభం మరింతగా ముదిరింది. బీహార్ ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ రాజీనామా చేశారు. దీనికి సంబంధించిన మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి అరుణ్ అడిగి తెలుసుకుందాం. అరుణ్, చెప్పండి, బీహార్ ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ రాజీనామాకు గల కారణాలేంటి? బీహార్ లో రాజకీయ సంక్షోభం మరింత ముదురుతా ఉంది. ప్రధానంగా చెప్పుకుంటే లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ కొడుకు తేజస్విని యాదవ్ సంబంధించినటువంటి వ్యవహారంలో ఇప్పటి వరకు ఇరువురు నేతలు కూడా పలు దఫాలుగా చర్చలు జరుపుతూ వచ్చారు. ఇటు నితీష్ కుమార్ పార్టీ, అటువైపు ఆర్జేడీకి సంబంధించిన లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ సంబంధించినటువంటి మనుషులతో పాటుగా అందరూ ఎప్పటికప్పుడు చర్చలు జరుపుకుంటూ వస్తున్నప్పటికీ ఇటీవల నితీష్ కుమార్ ఇంటి పైన నితీష్ కుమార్ కూతురు, అదేవిధంగా నితీష్ కుమార్ కొడుకు, నితీష్ కుమార్ భార్యకు సంబంధించినటువంటి ఆస్తుల పైన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కావచ్చు, అదేవిధంగా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ కావచ్చు, సిబిఐ కావచ్చు, 3 రకాల కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు, కేంద్ర ఆర్థిక దర్యాప్తు సంస్థలు ఏవేవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికి సంబంధించిన అన్ని దర్యాప్తు సంస్థలు ఒకేసారి మూకుమ్మడిగా బీహార్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ కు సంబంధించినటువంటి ఆస్తులు, వ్యవహారాలు, గతంలో చేసినటువంటి అక్రమాలపై విచారణ చేపట్టాయి. సో ఈ విచారణ నేపథ్యంలో లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ వ్యవహరిస్తున్నటువంటి తీరు ఒక రకంగా నితీష్ కుమార్ ను బెదిరించే విధంగా ఎందుకంటే ప్రస్తుతం నితీష్ కుమార్, లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ ఇరు పార్టీల నేతలు కలిసి ఇరు పార్టీలకు సంయుక్తంగా ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని నడిపిస్తూ ఉన్నారు. ఈ ప్రభుత్వం నేపథ్యంలో ఎక్కువ భాగస్వామ్యం లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ కు, తక్కువ భాగస్వామ్యం నితీష్ కుమార్ కు ఉంది. అయితే నితీష్ కుమార్ కు పూర్తి స్థాయిలో మద్దతు ఇవ్వటము, ఇద్దరు కలిసి ప్రభుత్వ ఎన్నికలకు వెళ్ళటము, ఎన్నికల్లో గెలవటము ఇవంతా జరిగింది. సో ఈ నేపథ్యంలోనే ఇద్దరు కలిసి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయటం వంటి అన్ని అంశాలన్నింటినీ కూడా లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్, నితీష్ కుమార్ చర్చించి ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు వెళ్లారు. సో ఇరువురు కుమారులు, లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ సంబంధించినటువంటి ఇద్దరు కుమారులు కూడా ప్రభుత్వంలో భాగస్వాములుగా కావాలని చెప్పి ఆ రోజు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దాని ప్రకారమే తేజస్విని యాదవ్ కు మంత్రి పదవి కట్టుబెట్టడం జరిగింది. నితీష్ కుమార్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం. ఆ తర్వాత నుంచి ఒక రకంగా చెప్పుకోవాలంటే గత 2 నెలలు 3 నెలల కాలం నుంచి బీహార్ లో రాజకీయ పరిణామాలన్నీ వరుసగా మారుతూ ఉన్నాయి. ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఎన్నికల తర్వాత నుంచి మరింత పరిణామాలు మారుతున్నట్లుగానే చెప్పుకోవచ్చు. ఒకవైపు నితీష్ కుమార్ పైన ప్రభావం చూపిస్తూనే, అంటే లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ తనకు సంబంధించిన వారికి పదవులు ఇప్పించుకోవడం కానీ, అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో పనులు చేపించుకోవడం కానీ, ఇటువంటి అన్ని అంశాల్లో కూడా లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకత ఉండాలని, తన మాటే చెల్లుబాటు కావాలని తేజస్విని యాదవ్ ద్వారా ఒత్తిడి తీసుకొస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ నేపథ్యంలో ఈ పరిణామాలన్నీ జరుగుతున్న క్రమంలోనే ఇటీవల జరిగినటువంటి కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు, అదేవిధంగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కు సంబంధించి ఆదాయ పన్ను శాఖ అధికారులు, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ చేసినటువంటి దాడులు, అక్కడ బయటపడినటువంటి అక్రమాలు, గతంలో లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో, అదేవిధంగా రబ్రీదేవి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో ఇరువురు నేతలకు సంబంధించినటువంటి ఆస్తుల పైన, ఇరువురు అక్రమ ఆస్తులు ఏ విధంగా సంపాదించారు ఏమిటి, అదేవిధంగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలుగా ఉన్నటువంటి హోటల్స్ ను కూడా ప్రైవేటు పరం చేయడంతో పాటుగా అతి తక్కువ లీజుకు తన కుటుంబ సభ్యులకు కట్టబెట్టుకోవడము, తద్వారా వేల కోట్ల ఆస్తులు సంపాదించుకునేటువంటి అనేక ఆరోపణలు కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థల ద్వారా రుజువు అవుతూ వస్తున్న నేపథ్యంలో ఇరువురి మధ్య కూడా దాదాపు గ్యాప్ పెరుగుతూ వస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ గ్యాప్ మరింత ముదురుతోంది. గత 2 రోజులుగా జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాల నేపథ్యంలో ఈ ఇరువురు నేతల మధ్య, నితీష్ కుమార్ అదేవిధంగా లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ మధ్య ఒక రకమైనటువంటి మాటల యుద్ధం జరగడంతో పాటుగా నితీష్ కుమార్ లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ కొడుకైనటువంటి తేజస్విని యాదవ్ ని రాజీనామా చేయాలని, దీని ద్వారా ప్రభుత్వ ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది కాబట్టి ప్రభుత్వ ప్రతిష్టకు అనుగుణంగా వ్యవహరించవచ్చు, ప్రభుత్వంలో మీరు భాగస్వాములై ఉన్నారు, మచ్చవు లేనిటువంటి వ్యక్తులకు పదవులు ఇవ్వడం ద్వారా మీకు మాకు ఇద్దరికి మంచిది అనేటువంటి ఒక సంకేతాలను నితీష్ కుమార్ లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ కి ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ కొడుకుని మంత్రివర్గం నుంచి తప్పించుకోవడం అనేది లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ కి ఇష్టం లేకపోవడంతో ఈ రోజు లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ చాలా స్పష్టంగా ఒక ప్రకటన చేయడం జరిగింది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తన కొడుకు తేజస్విని యాదవ్ మంత్రి పదవిలోనే ఉంటారు, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తప్పుకునేది లేదు అని చెప్పి స్పష్టం చేసిన తర్వాత నితీష్ కుమార్ తన పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, అనుచరులు, ముఖ్య నేతలతోటి భేటీ అయ్యారు. దాదాపు గంట నుంచి గంటన్నర పాటు జరిగిన భేటీ తర్వాత కొద్దిసేపటి క్రితం గవర్నర్ కేశర్నాథ్ త్రిపాఠిని కలిసి తన రాజీనామా పత్రాన్ని సమర్పించడం జరిగింది. ప్రభుత్వం ఇకపై తాను నడపలేనని, ఈ జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలకి నేను సాక్షిగా నిలవలేనని, ఈ అనేక అక్రమాలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో తన ధన్యవాదాలు.
अभी क्या फायदा है? मैंने अभी राज्यपाल महोदय से मिलकर हमने महागठबंधन की सरकार ज्यादा समय तक और जितना संभव हुआ है गठबंधन धर्म का पालन करते हुए बिहार की चुनाव के दौरान के मुताबिक हमने काम करने सात निश्चय पर अमल करना प्रारंभ किया। बिहार में सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी गई, शराबबंदी लागू करके और जो कुछ भी काम पहले से चल रहा था, चाहे वो कृषि विकास का टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, बुनियादी ढांचे का विकास हो, सड़क हो, क्रिया हो, कल्याण से संबंधित योजनाएं हो, सब के लिए हमने निरंतर काम करने की कोशिश की। यात्रा के दौरान हमने स्पॉट पर हर जिले में जो योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है वो प्रतिनिधियों के साथ यानी जितना भी संभव है हमने वह काम करने की कोशिश की है। 20 महीना पूरा हो चुका, 1/3 लेकिन इस बीच में जो चीजें उभर कर सामने आई, अब उस माहौल में मेरे लिए काम करना, नेतृत्व करना हमने कभी किसी का इंतजार नहीं किया। हमारी लालू जी से भी बात की, तेजस्वी जी भी हमने यही कहा है कि भी आरोप लगे उसके बारे में बताने की कोशिश हो रही है या अन्य बातें कही जाती है, वो अपने समर्थकों के लिए कही जाती है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन आम जन के बीच में जो एक अवधारणा बन रही है वो ठीक करने के लिए एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। जब आप लेकिन अब वो भी नहीं हो रहा है और मिलाकर माहौल ऐसा होता चला जा रहा है। अब तो ऐसी परिस्थिति हो गई कि अब काम करना भी संभव नहीं हुआ, क्योंकि हम कुछ भी काम करें लेकिन परिचर्चा में एक ही बात है और आज तक हमने इन बिंदुओं पर जो अपना रुख रखा है उससे अलग हम रुख नहीं रख सकते। हमने अपनी तरफ से गठबंधन का पूरा पालन करने की और जब पूरे माहौल को हमने देखा है और उसके बाद मुझको लगा कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये हमारे अंतरात्मा की आवाज है
हमने कई बार सोचा, अनेक दिनों से यह बात मेरे मन में चल रही थी, कोई रास्ता निकल जाए। हमने राहुल जी से भी बातचीत की और आप सब जानते हैं उनका भी अब तक का जो रुक रहा है उसको देखते हुए, क्योंकि उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, ये सारी बातें थी, इसको देखते हुए कुछ ऐसा तो कीजिए। बिहार में भी जो कांग्रेस के लोग हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे भी हमने कहा कि भाई कुछ ऐसा कीजिए जिससे सबको एक रास्ता मिले। लेकिन मुझको ऐसा नहीं लग रहा था कि एक बिला वजह का यह बात कि संवादहीनता है, मिल लेंगे समस्या का हल हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी लालू जी के साथ, आरजेडी के साथ कोई संवादहीनता नहीं। हमने अपनी बात कह दी थी, अब उस पर उनको गौर करना था। अब वहाँ की अपेक्षा होती है कि साहब हम संकट में तो मेरी रक्षा करो। यह कोई संकट नहीं है, यह अपने आप लाया गया संकट, इसको संकट नहीं कहते। आखिरकार आरोप लगा तो उसका उत्तर देना चाहिए प्रॉपर, वस्तुस्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। अगर उसको स्पष्ट कर देते वो हम लोगों को भी एक आधार मिलता, लेकिन हमने इतने दिनों तक इंतजार किया और ऐसा लग गया कि भाई वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, कहना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं अब जवाब तो नहीं दे सकता। और जिस सरकार का नेतृत्व कर रहा हूं, उस सरकार के अंदर के व्यक्ति के बारे में कुछ बातें कही जाती है, हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। वैसी स्थिति में इस प्रकार की सरकार को चलाने का कोई मेरे सामने कोई आधार नहीं। इसलिए हमने समझा कि चलिए और कुछ नहीं, अब ऐसी स्थिति आई, जब तक चला सकते थे चला दिया। अब मेरे ये स्वभाव और काम करने के तरीकों के अनुरूप नहीं है और हमने सब लोगों से अपनी बात कही है। ऐसा नहीं है कि कोई छिपी हुई बात है। और जिस तरह से आप समझ लीजिए देश की राजनीति चल रही है, मैंने कौन सा प्रयत्न नहीं किया कि एकता हो और इसके लिए प्रयास किया। अब आप ही सोचिए, नोटबंदी का मसला आया, हमने नोटबंदी का समर्थन किया, मेरे ऊपर न जाने क्या क्या आरोप लग गए कई दलों की तरफ से। और आप भी जानते हैं कि जब हम नोटबंदी का समर्थन कर रहे थे तो हमने साफ साफ कहा कि बेनामी संपत्ति पर हिट कीजिए, तो हम कैसे पीछे जा सकते। लेकिन हमने जो जनहित में था और लोगों को नोटबंदी का अच्छा प्रभाव दिख रहा था, खासकर आम लोगों में, गरीबों में, और हमने साफ साफ कहा बेनामी संपत्ति पर हिट करिए। हम हमेशा गांधी जी को कोट करते हैं। गांधी जी ने हमेशा कहा कि इस धरती पर लोगों की जरूरत की पूर्ति होगी, लेकिन लालच की नहीं, नीड की पूर्ति होगी, लेकिन ग्रीड की पूर्ति नहीं हो सकती। मैं इसका उल्लेख करता रहा हूँ। मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ कि भाई ये धन संपत्ति अर्जित करना गलत तरीके से, आखिर ये क्या प्रवृत्ति है। और हम बार बार कहते रहे अपने भाषणों में कि कफन में कोई जेब नहीं होता, जो भी है यही रहेगा। तो हम इस तरह की बात करते रहे हैं, मेरा रास्ता ये रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं। और जहाँ तक बात होती है भाई गठबंधन और विपक्षी एकता, तो हम तो विपक्षी एकता के पक्षधर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार की विपक्षी एकता? विपक्षी एकता का कोई एजेंडा होना चाहिए, मैं तो समझता रहा हूँ। और एक पार्टी के नाते, एक व्यक्ति के नाते अगर हम लोगों की सोच है, क्या हम अपने सोच को प्रकट नहीं कर सकते? चाहे नोटबंदी का प्रश्न हो या कोई भी प्रश्न हो। अभी राष्ट्रपति महोदय के चुनाव के सवाल पर हमने स्पष्ट तौर पर कहा कि भाई हमारे बिहार के गवर्नर रहे, बिहार के लिए गौरव की बात है, वो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। इतना अच्छा काम किया तो हम लोगों ने तय किया कि उनको हम समर्थन देंगे। इस बात को लेकर न जाने मेरे ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए। मैं इन सब चीजों को झेलता रहा हूँ, लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में जब ये वातावरण बन गया हो तो हमारी क्या भूमिका है, हम क्या कर सकते हैं मदद। इसलिए मुझको कुल मिलाकर ऐसा लगा
कि एक सोच का दायरा भी अलग है, न कोई अपना डिस्कोर्स है, न कोई अपना एजेंडा है, सिर्फ रिएक्टिव एजेंडा से कोई काम चलने वाला नहीं है। उसके लिए कुछ बात होनी चाहिए थी, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हुई इतने दिनों तक। हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है और उसके बाद अंततः जिस बिहार में काम कर रहे हैं उस बिहार की ऐसी स्थिति हो जाए जहाँ के जनमत में आज और कोई बात की चर्चा हो ही नहीं रही है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम अपनी तरफ से अब तक की जो हमारी सोच है उसके अनुरूप अगर हम अपना स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर यह उचित नहीं होगा। इसलिए हमने अपने अंतरात्मा की आवाज पर पूरी चीज को देखते हुए हमने समझा कि अब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इस सरकार का चलाना संभव नहीं है। इसलिए हमने यह तय किया कि भाई हम किसी के खिलाफ नहीं, हम कोई विवाद नहीं पैदा करना चाहते। अब चारों तरफ चर्चा हो रही थी, नहीं देगा इस्तीफा, डिसमिस करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं। हम उस तरह की राजनीति करते ही नहीं है। हम कोई प्रकार के विवाद की राजनीति नहीं करते। हमने देख लिया कि अगर कोई अब रास्ता नहीं है तो खुद ही नमस्कार करो, खुद ही वो जगह त्यागो। हमने वो जगह त्याग दिया है और जो मेरा विचार है और अब तक का जो हमारा काम करने का तौर तरीका हम उस पर अब तक काम करते रहे और जब मुझको दिख गया कि अब उस आधार पर और उस तौर तरीके से आप काम नहीं कर सकते हैं तो हमने मुनासिब समझा अपने आप को अलग कर दिया। इसलिए आज हमने अपने आप को अलग कर लिया है और आज तो यही है। राज्यपाल महोदय ने मेरे त्याग पत्र को स्वीकार किया है क्योंकि हमने इस्तीफा दे ही दिया है और जब तक कोई व्यवस्था नहीं होती है तब तक काम करते रहने को कहा है। यह तो एक औपचारिक चीज है और यह एक रूटीन चीज है और यह तो वहाँ से ही कहा जाएगा। और जहाँ तक सवाल आगे क्या होगा, कब होगा, कैसा होगा, यह सब तो आगे पर छोड़ दीजिए। आज का चैप्टर यही। सर, आर यू इन टॉक विद अदर पार्टी? सर, आर यू इन टॉक? क्या वो विधानसभा चलेगा? आप वो तो आपको विधानसभा के अध्यक्ष ही बता पाएंगे। जिस सरकार ने मंत्रिपरिषद ने विधानसभा आहूत की और उस मंत्री परिषद ने ही त्याग पत्र दिया है तो इन सब चीजों के लिए बने बनाए नियम है। इसलिए उन नियमों के आधार पर सब संचालन होता है। जो भी नई सरकार बनेगी वो आगे का काम करेगी। लेकिन आज तो वर्तमान जो सरकार है जिसका मैं नेतृत्व कर रहा था, मुझको ये प्रतीत हो गया कि अब इसके आगे काम करना संभव नहीं है क्योंकि मेरा कमिटमेंट बिहार के प्रति, बिहार के लोगों के प्रति है। बिहार का विकास, न्याय के साथ विकास के प्रति मेरा कमिटमेंट है और हम उस कमिटमेंट को अब आगे ऐसी परिस्थिति में निभा नहीं सकते हैं, उस काम को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं तो आज की परिस्थिति में ऐसी सरकार का नेतृत्व करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं किसी को कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो अपने आप ये सोच लिया कि अब मेरे लिए यह संभव नहीं है और हमने पूरा प्रयत्न किया है पिछले 15 दिनों में जो भी संभव है सब तरह से प्रयत्न किया कि कोई रास्ता निकले, लेकिन सारी बातें सतही हो रही थी और वैसी सतही बातों से हम लोगों को पेश नहीं कर सकते। लोगों के सामने हम जाएं और हम अपनी मान्यताओं के अनुरूप अगर अपने आचरण को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं तो वो कैसा पब्लिक लाइफ है। हम लोग तो शुरू से बोलते रहे लोकतंत्र लोकलाभ से चलता है। अब इस पर कोई सवाल उठाएगा हमने क्या उठाया? हमने कहा नोटबंदी के साथ साथ बेनामी संपत्ति पर हमला किया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? ऐसी परिस्थिति में मेरे लिए मैं किसी को कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं। जिनको जितना ब्लेम करना है वो ब्लेम करें, लेकिन मेरे लिए अब तक जहां तक संभव था हमने किया है और जितने लोगों ने अब तक सहयोग किया मैं उन सबों को धन्यवाद देता हूं। लेकिन नहीं, ये सब कोई चीज नहीं है। 20 महीना कोई मामूली पीरियड नहीं, 1/3 पूरा हो चुका, उसके आगे बढ़ा हुआ 1/3 पीरियड हमने चला दिया ठीक से। गवर्नेंस के मामले पर कोई ज्यादा उंगली नहीं उठी है। कई तरह की कठिनाइयों को हम झेलते रहे, वो एक अलग बात है।
लेकिन हमने हमेशा ध्यान रखा कि विकास हो, लोगों की हम खिदमत करें, वो करते रहे। लेकिन अब पूरा का पूरा परिदृश्य बदल गया, अब पूरा का पूरा डिस्कोर्स बदल गया। तो ऐसी परिस्थिति में इस सरकार का नेतृत्व करना मेरे लिए संभव नहीं था, इसलिए मैंने त्याग पत्र दे दिया है। बीजेपी के साथ जा सकते हैं क्या? बीजेपी के साथ सरकार बनाने की पहल भाई अब क्या होगा, अब इसके लिए सब आगे ना आप देखते रहिए। अभी तो जो होना था वो हो गया। आज तो अब एक चीज पर जो भी होना था उसकी तार्किक परिणति हो गई। अब इसके बाद क्या होता है, अगर कुछ भी बिहार के हित में होगा, कोई भी चीज बिहार के हित में होगा, बिहार के न्याय के साथ विकास के हित में होगा, उस पर हम लोग जरूर विचार कर निर्णय लेंगे। अगर ऐसी कोई बात आती है जो बिहार के हित में होगा, हम वो जरूर फैसला लेंगे। लेकिन मेरे पॉलिटिकल जिसको कहिए कि एक्टिविटी अब तक जितनी रही है, इसमें जो मूल सिद्धांत है उसके साथ कोई समझौता करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैंने बहुत ही हमने खिदमत की है, बहुत ही सेवा की है, सब तरह से जितना भी मेरे पास क्षमता है हमने काम किया। अब इसके अलावे बिहार के वो जाने, अब हमने हमको जो भी कहना था कर दिया। अब कुछ चीजों को ऊपर पर भी छोड़ देना चाहिए। नहीं, हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। कीमत पर अनावश्यक अपनी तरफ से कोई विवाद नहीं पैदा करना चाहता। अगर वो करते तो बड़ी ऊंचाइयों पर चले जाते, अगर स्वयं करते तो। लेकिन खुद भी नहीं सोचा, क्या सोचा, किसी को आगे बढ़ाना है तो उसका कुछ ख्याल रख के उसकी रक्षा करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह का काम करिए कि वह भी कहीं न कहीं उस पर आरोप लगे, वह कहीं न कहीं फंसता हुआ दिखे। ये रास्ता ठीक नहीं है। लेकिन मुझे कुछ नहीं कहना, सबके अपने अपने रास्ते हैं, हमारे अपने रास्ते हैं। जितना दूर तक संभव हुआ हमने निभाया है और पूरी मजबूती और निष्ठा के साथ निभाया है। अब इसके आगे संभव नहीं था, इसलिए मैंने त्याग पत्र दे दिया। और त्याग पत्र देने के पहले हमने माननीय लालू जी को भी सूचित किया और कांग्रेस के जो प्रभारी हैं श्री जीपी जोशी जी, उनको भी सूचित किया। और इन दोनों के पहले अपने विधानमंडल दल के माननीय सदस्यों के सामने भी अपने बात रखी। और तब हम गए हैं महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ, और उसके बाद हम आप लोगों से मुखातिब हुए। आप सब इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, क्या आप जितना मुझको कहना है, ये सब चीज जो होना था वो तार्किक परिणति तक पहुंच चुका है। अब इसके आगे कयास लगाने की कोई जरूरत नहीं। बहुत धन्यवाद। బీహార్లో రాజకీయ సంక్షోభం ముదిరింది. అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఉప ముఖ్యమంత్రి తేజస్వి యాదవ్ పదవి నుంచి తప్పుకునేందుకు నిరాకరిస్తున్న నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమారే సీఎం పీఠం నుంచి తప్పుకున్నారు. ఈ మేరకు కాసేపటి క్రితం రాజ్భవన్కు వెళ్లి గవర్నర్కు రాజీనామా లేఖ సమర్పించారు. తేజస్వి యాదవ్తో రాజీనామా చేయించేందుకు లాలూ నిరాకరిస్తున్న నేపథ్యంలో నితీష్ అనూహ్య నిర్ణయం బీహార్లో సంచలనం సృష్టించింది. తేజస్వి యాదవ్ వ్యవహారంపై గంట పాటు న్యాయ నిపుణులతో చర్చించిన నితీష్ ఆ తర్వాత రాజ్భవన్కు వెళ్లి రాజీనామా సమర్పించారు. कुछ गड़बड़ नहीं है और इस्तीफा भी नहीं देंगे। तो नीतीश कुमार जी ने आज एक फैसला किया है, अब उनको आगे तय करना है।
मुझे पीड़ा अपने बिहार के लिए है। ये गठबंधन न कोई विचारधारा का था, न ये गठबंधन कोई समन्वय का था। ये तो डर का गठबंधन था, भाजपा का डर था। लेकिन उसके कारण बिहार का गवर्नेंस समाप्त हो गया है। अब नीतीश जी को तय करना है। उन्होंने एक कदम उठाया है, अब आगे उनको रणनीति क्या करनी है। लालू प्रसाद जी ने साफ कह दिया कि मेरे बेटे इस्तीफा नहीं देंगे और हम नीतीश जी को सरकार चलाने के लिए कहेंगे। तो नीतीश जी जो अपनी छवि के लिए बहुत सावधान रहते हैं, तो उनको तय करना है। अब उन्होंने एक इस्तीफा दिया है, अब आगे की राजनीति क्या बनती है इसको देखना पड़ेगा। की भी तो जिम्मेदारी सर, स्थायित्व बिहार में स्थायित्व रहे, ये जिम्मेदारी बीजेपी की भी तो है। तो आप लोग क्या पॉसिबल है कि नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं सपोर्ट? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, नीतीश कुमार जी अटल जी के समय से हमारे साथ रहे, मंत्री रहे हैं। 2005 से 2013 तक 8 साल तक हम लोग सरकार में रहे हैं। हमने नीतीश जी को नहीं छोड़ा, उन्होंने हमें छोड़ा था। अब बाकी उनको तय करना है। अब क्या फिर से साथ है? अब अभी उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक बात अवश्य है कि बिहार की राजनीति अभी अनिश्चितता के दौर में है। अब हमें नीतीश जी के अगले कदम का इंतजार करना चाहिए और लालू जी के अगले कदम का इंतजार करना चाहिए। एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि नीतीश जी और लालू जी का ये जो पूरा अलायंस था, ये बेमेल अलायंस था। लालू जी जहां भ्रष्टाचार की कोई कीमत नहीं है, नीतीश जी इस पर चिंता करते हैं। अब उसमें एक स्थिति पैदा हुई है, आगे देखते हैं क्या होता है। सर, आपको समर्थन मांगेंगे बीजेपी से औपचारिक तौर पर, जैसे कि संकेत है, तो क्या बीजेपी इस बात को लेकर फैसला करेगी समर्थन देने का? अगर ऐसा कुछ मांगेंगे तो फिर पार्टी का नेतृत्व इसमें विचार करेगा ना। सर, मैं काल्पनिक सवालों का उत्तर नहीं दे सकता। सर आपको लगता है कि गठबंधन अब फाइनली टूट गया है या अभी भी कुछ आपको? अब वो राज्यपाल से मिलने गए हैं, अब प्रेशर काउंटर प्रेशर पर मैं क्या बोलूं। मैं बिहार से आता हूं तो मुझे अपने प्रदेश की चिंता है और अस्थायित्व की चिंता है, और एक बात अवश्य कहूंगा, ये तो होना ही था।